भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भारतीय विदेश नीति को परिभाषित करती हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरा एक मजबूत नेता, एक मजबूत भारत का प्रतिनिधि, एक ऐसा देश जो आर्थिक विकास कर रहा है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश जिसे पश्चिमी देश विस्तारवादी चीन के मंसूबों पर विराम लगाने वाले एशिया के शक्तिशाली देश के तौर पर देखते हैं। India's come center stage because of our ability, particularly the Prime Minister's ability to work in partnership with different leaders and work in partnership with different countries. Narendra Modi started with a masterstroke. He was the first Prime Minister of India to think of inviting the immediate neighbors of South Asia and Mauritius, our near neighbor, to his inauguration. No other country so far in a kinetic situation stood up to China the way we have. दुनिया के कई नेता भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें करते नहीं थकते। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. प्रधानमंत्री बनते ही 2014 में पहले दिन से विदेश नीति और विदेशों में भारत की छाप छोड़ना उनकी बड़ी प्राथमिकता रही है। अगस्त 2014 में भारत के पड़ोस के अलावा पहली विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। एक ऐसी दोस्ती पनपी जो पिछले साल जुलाई में आबे की दुखद हत्या के साथ ही खत्म हुई। आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है। प्रधानमंत्री इस वक्त वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आबे के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे। शिंजो आबे उनके परम मित्र, आज भारत और जापान की सेनाएं एक साथ प्रशिक्षण करती हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान मालाबार नौसेना अभ्यासों का एक अहम हिस्सा है। साझा खतरा चीन और उसकी बढ़ती नौसेना की ऐसी जगहों पर मौजूदगी है जहां भारत को चुनौती देने वाला कोई नहीं हुआ करता था। Our relationship with Japan, it was always ever since we did the look east approach, it was important, but with Mr. Abe, he had a very special relationship. Similarly, the breakthrough with the Saudis and the UAE, I think that improved our position in the Middle East. The relationship with Israel, which had started even earlier, again has flowered. You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. Until you visited Israel, no leader of India in 3,000 years of our own sovereign existence and our history has visited Israel. You are the first leader of a state, of an India state, to do this. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुके हैं।
इस साल अप्रैल तक उन्होंने 67 विदेश यात्राएं की, जिनमें वो 63 देश गए। May no one suffer. Om, peace, peace, peace. May the force be with you. de su excelencia Narendra Modi। इनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा भी शामिल है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। India's foreign policy has been really vibrant. It's been very dynamic. To my mind, India's come center stage because of our ability, particularly the Prime Minister's ability to work in partnership with different leaders and work in partnership with different countries. So we've never been a part of any bloc. We work, everybody is our partner. And I think that has really been the key to a very vibrant, lively and a very forward-looking foreign policy of India. 2014 से लेकर अब तक उनकी विदेश नीति की टीम के प्रमुख लोगों पर नजर डालें तो उनमें दिवंगत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, और शायद सबसे अहम देश के पूर्व विदेश सचिव और मौजूदा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हैं, जो भारतीय विदेश नीति का एजेंडा चला रहे हैं। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अमेरिका के साथ संबंधों में आया है। दशकों तक एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखने के बाद अब भारत और अमेरिका सबसे नजदीकी रणनीतिक साझेदार हैं। कई ऐसे बुनियादी समझौतों को मंजूर किया है जिन पर दोनों पक्षों को राजी होने में कई साल लग गए। अमेरिका अब भारत को नई दिल्ली की मॉस्को के साथ नजदीकी के चश्मे से नहीं देखता और भारत अमेरिका को इस्लामाबाद से उसके रिश्तों के चश्मे से नहीं देखता। चार बुनियादी समझौतों पर मंजूरी होने के मायने हैं कि भारत और अमेरिका के सैन्य और रणनीतिक तौर पर गैर नेटो देशों में सबसे नजदीकी रिश्ते हैं। जापान की तरह ही अमेरिका के साथ भी गहराते रिश्ते की बुनियाद एक शब्द में कही जाए तो वो है चीन। अमेरिका ने प्रशांत महासागर पर ध्यान केंद्रित किया है तो उसे भारत स्वाभाविक साझेदार के तौर पर दिखता है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों की साझेदारी, इस साझेदारी को बनाने में नरेंद्र मोदी का निर्णायक हाथ रहा है। Today, the United States is our largest economic partner. The last figure that I saw was $162 billion of trade in goods and services. I think it has grown since then. There are about $22 billion worth of arms purchases we made from the United States. We've signed all the foundational agreements, some of them during Prime Minister Modi's time, to set the foundation for increasingly close ties. In terms of the range of dialogues we have on all issues today facing the international community, we have the most intensive dialogue with the United States. I would say, yes, Prime Minister Modi has given a really new dimension to our ties by broadening them in so many areas, which
were not there on the agenda before. एक ऐतिहासिक घटना आज मोटेरा के इस विशाल स्टेडियम में जिसके साक्षी हम बने हैं। मैत्री का ये संदेश आज विश्व भर को प्राप्त हुआ है। President Donald Trump shaking hands, a warm hug, symbolizing the great Indo-American friendship. The aim is to strengthen and deepen the ties further. अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप समारोह में डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास दिलाया गया कि भारत के साथ दोस्ती के क्या मायने हो सकते हैं। इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। नमस्ते ट्रंप। Namaste. The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. लेकिन इस रिश्ते से रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्तों पर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ा है। ये बात यूक्रेन के साथ ताजा संकट में स्पष्ट हो गई। कीव के साथ निकट संबंध बनाए रखने के साथ साथ भारत ने यह भी साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रहेगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी ये कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। साथ ही रूस से तेल आयात की भी मंजूरी दी, जिस फैसले की पश्चिमी देशों ने आलोचना की, लेकिन नई दिल्ली ने सीधा जवाब दिया। इसका एक और बिंदु ये है कि भारत से कहीं ज्यादा आयात यूरोप करता है। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. मॉस्को के साथ रिश्ते और कारणों से भी बनाए रखने चाहिए। भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। The Americans have realized that on this issue of our relationship with Russia, they cannot push us beyond a certain point. Now, if they were to really start imposing sanctions, as they are in the habit of doing, then this can very rapidly erode the relationship they are building. And at some level, and that's to the credit of the US policymakers currently, they understand that our relationship with Russia is long-standing and just cannot be turned around quickly. भारत के साथ ऐतिहासिक सैन्य रिश्तों के बावजूद मॉस्को चीन को हथियार देता ही जा रहा है। हाल ही में वो अत्याधुनिक S-400 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली चीन को दे चुका है, वही जो रूस भारत को भी बेच चुका है। आज रूस के हथियारों से ही दोनों देशों की रक्षा की जा रही है, वो भी ऐसे समय जब बीजिंग के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं।
जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो हालात ऐसे नहीं थे। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे झूला झूलते हुए नरेंद्र मोदी और चीन के शी जिनपिंग की इन दोस्ताना तस्वीरों के बाद माहौल खराब हुआ, जिसे भारत चीन का विश्वासघात बताता आया है। नई दिल्ली के हिसाब से धोखे की शुरुआत डोकलाम में 2017 में शुरू हुई, जब भूटानी इलाके में बन रही अवैध सड़क के निर्माण को रोकने के लिए भारतीय सैनिक पहुंच गए। चीन पीछे हटा और अपना ध्यान दोनों देशों की पूरी सीमा पर लगा दिया। प्रधानमंत्री को इस बात की खबर तब नहीं होगी जब वह 2018 में चीन के वुहान में शी के साथ एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में शरीक हुए थे। दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 घंटों तक 6 दौर की बातचीत चली थी। Chinese behavior which we simply are unable to fathom. You know, what happened in 2020, why did it happen, what were the Chinese motives? Even today it's very difficult to tell. I've written a book on this, and eventually I don't have any answer as to what the Chinese are up to. But clearly the Chinese challenge, and we also have to understand that, don't forget that till the end of 2019, Modi was going great guns with the Chinese. We had had 2 informal summits, one in Wuhan, one in Chennai. You know, and informal summits were billed as a new phase of Sino-Indian relationship. And then suddenly in 2020, they sweep the rug under our feet. कुछ का कहना है कि लद्दाख संकट के बीज डोकलाम में ही बोए गए थे। 16 जून 2020, गलवान, लद्दाख। 违背与我方达成的共识，悍然。भारत और चीन की सेनाओं के बीच 1962 के युद्ध के बाद होने वाली सबसे गंभीर झड़प हुई। सीमा पर भारी चीनी चढ़ाई की गई, जहां दशकों तक शांति थी। इस चढ़ाई से भारत और चीन युद्ध के मुहाने पर आ गए। परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक 12,000 फुट पर एक दूसरे के आमने सामने थे। एलएसी के पार चीनी सैनिकों की भारी तैनाती का सामना करते हुए भारत का जवाब साफ था कि हम एलएसी के इस तरफ भी वैसा ही निर्माण करें जैसा चीन अपनी तरफ कर रहा है। भारत के दूसरे विरोधी पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी सीधे सीधे वार करते आ रहे हैं। Pakistan must walk away from terror if it wants to work towards dialogue with India. संदेश साफ था, बिल्कुल स्पष्ट था। अगर तुम हमें मारोगे, हम वापस वार करेंगे, ज्यादा सख्त, ज्यादा बल के साथ। 29 सितंबर 2016, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते।
भारत ने एक और हमला किया। पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने के बाद Pakistan has used terror as an instrument of state power against a neighbor. It is probably the most ruthless set of actions any country has seen. What this government has done is to convey a very clear message that it will not stand for any act of terrorism and that there will be retribution delivered rapidly and proportionately. And this is what has happened. Now, I think this is the only way for a state to function. You cannot take slaps in the face and then say, ठीक है, गलती हो गई, चलो माफ कर दिया। 14 फरवरी 2019, बालाकोट। पाकिस्तान को एक सख्त संदेश देना था कि आतंक का जवाब हमले से होगा। भारतीय वायुसेना ने दशकों बाद पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसकर एक पहाड़ी पर जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी शिविर को निशाना बनाया। Operation was carried out to tell Jaish e Mohammed that no matter where you are, wherever you are, like in this case they were in Pakistan, we'll come and get you. If you carry out terrorist attacks in our country. I think that message went down loud and clear. लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने भी अगली सुबह हमला किया, जिसके नतीजे में भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेनाओं के बीच 1971 के बाद पहली बार हवाई झड़पें हुई। भारत में उस दिन एक नया नायक उभरा, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। वायुसेना के वो पायलट जिन्होंने पाकिस्तानी F-16 को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका अपना विमान नीचे गिर गया और वो युद्धबंदी बना लिए गए। आखिरकार अभिनंदन एक हीरो के तौर पर भारत आए। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। मोदी, मोदी, मोदी। मजबूत नेता के नेतृत्व में मजबूत भारत की यही छवि दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को भा रही है। इससे पहले ऐसा कोई भारतीय नेता नहीं रहा जिसका विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ ऐसा जुड़ाव रहा हो। ये विदेशी धरती पर भारत के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी के घोर समर्थक हैं। विदेश में रहने वाले भारतीयों से प्रधानमंत्री खुलकर बात करते दिखते हैं। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है। रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। The genius is in using not only the non-resident Indians, but the diaspora. And the diaspora are people of the first, second, third, and subsequent generations. It was Israel that crafted the method, for its own reasons, for its survival, the method of diaspora management. And I think India is probably the second major country to have learned the skill of reaching out to the diaspora. It's an investment of effort. To be truthful, previous prime ministers have also done this. But Narendra Modi
has taken it maybe 2 steps further forward. निजी अंदाज और स्पष्ट अभिव्यक्ति का दुनिया के बड़े नेताओं पर भी असर पड़ा। प्रधानमंत्री को एक दोस्ताना भारत के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साझेदारी के लिए तैयार हो। India has shown the world that even in a time of greatest need and crisis, they can be a reliable partner. कोविड जब चरम पर था तो भारत टीके निर्यात करने वाले पहले देशों में से एक था। भारतीय कूटनीति की पहुंच ने दुनिया भर में परेशान भारतीय नागरिकों को राहत दी। यूक्रेन, यमन और सूडान में फंसे भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री के बनाए नजदीकी रिश्तों के कारण मुश्किल हालात से सही सलामत निकल पाए। आज भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ताकत के तौर पर स्थापित हो चुका है, जिसको शायद सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चुनौती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। G20 देशों के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी देशों और रूस तथा चीन को एक मंच पर लाकर यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम भारत को 1.4 अरब नागरिकों की जिंदगियां बेहतर करने के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है सीमाओं पर स्थिरता और सबसे बड़े भौगोलिक रणनीतिक खतरे चीन से निपटना। चुनौती बहुत बड़ी है, जिसमें भारतीय कूटनीति की कुशलता और प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल टच की आजमाइश होगी।